We are celebrating Dr. S. and S. S. Gandhi Government Engineering College, Surat is celebrating 75 years of our independence. That is called Azadi Ka Amrut Mahotsav, Azadino Amrut Mahotsav. We are celebrating the 75 years of independence. And one of the events that we have organized in as a part of this celebration is this webinar, the motivational webinar, patriotic webinar, I would say. And the topic of this webinar is the role of youth in preserving independence, because we have already achieved an independence which is gifted to us by our ancestors, and now we are here to preserve it. Unless we preserve it, it's going to be very tough for us in years to come to live. So today's topic is the role of youth, your role in preserving the independence, how you can take care of our independence. And today's speaker is Professor KG Pua. He is an associate professor in electronics and communication, and he is a very dynamic personality. He is taking care of RUSA as well as Ek Bharat Shrestha Bharat scheme in the college, and he is very enthusiastic and positive teacher. Rather, I would say he always encourages and motivates the students to live the very happy and healthy life, academically as well as personally. So that's very best of him. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. Abua, sir, thank you very much. Here, I would like to just recall our principal, sir, Sahita ma'am, who helped us to manage this event. And we are here now to you for this webinar. So thank you very much well in advance to all of you to be here in the webinar, to all the departments, all the head of the departments. And now over to you, Bua sir. You can start your presentation. Bua sir. Yes, thank you very much for giving brief introduction and purpose of this webinar, Rana sir. And I would like to thank first our honorable principal sir, coordinator, and all the team member for giving me this opportunity in front of student. Now I would like to share, wasting more time. I would like to share my presentation, and we will start. So these are the three main topics. This is all about the youth of India, the Youngistan of India. I always say in my EBSB club, Youngistan, भारत के युवा क्या है और क्या कर सकते हैं. Okay, so youth में क्या है? Like high power laser beam, whoever touches it or gets in its way, it's wipe out or destroy. एक high power laser beam है, जिसने भी उसको टच किया उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे. इतना पावर है हमारे युवा. Every vein, every pore is filled with the horsepower of desire and ambition, racing to get out. हर एक नस नस में खून खून में कहते हैं ना हम, वो सब है. इतना पावर है, इच्छा है, एम्बिशियस है रेस में जाने का, सब है हमारे युवा में. And I always say that youth of India can do anything they desire. युवा, आज के भारतीय युवा जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं. And I always say that youth of India are not useless, but useless, because हम कई बार सुनते हैं कि आज के युवा क्या करते हैं, निकम्मे कुछ नहीं करते. But I always say that the youth of India are not useless, but actually they are used less. उसको एक रास्ता दिखाने का, कैसे यूज करना, वो एक पाथ दिखाने की जरूरत है. Now, according to me, what you can do, the youth should develop the habit of discipline in order to face and given situation with great confidence and get success. कोई भी सिचुएशन हो, वो डिसिप्लिन के साथ, एक शब्द को समझिए, फेस करना, कोई भी सिचुएशन को फेस करने का कॉन्फिडेंस अगर वो अचीव करे तो वो कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं. They can reactivate the lost glory of India with a strong willpower, sacrifice, honesty and character. हमारा
भूतकाल कितना भव्य था, ग्लोरी ऑफ इंडिया, आईपीडीसी पार्ट 2 में भी सब पढ़ते हैं, जितने स्टूडेंट ने वो सिलेक्ट लिया है कि हमारी पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया कैसी थी, भारत हमारा कैसा था, भव्यता कैसी थी, वो सब हम भूल गए। या तो आज के युवा को बताया नहीं जाता कि भारत क्या था। जिन लोगों ने आईपीडीसी वर्कबुक 2 नहीं सब्जेक्ट सिलेक्ट किया वो पढ़े, पता चले कि आज भी हम जो भी मैथमेटिक्स और साइंस की फॉर्मूला जो कुछ बाकी सब लोगों ने इन्वेस्ट किया, डिस्कवर के इन्वेंशन किया, वो हमारे पास्ट में इंडियन के पास पहले थे ही थी। तो रीएक्टिवेट, वो जरूरत है उसको रीएक्टिवेट करने की। एंड विथ इसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, सम सेक्रिफिकेशन चाहिए, सेक्रीफाई ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर, एंड युवा कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन। आपने सर्वे देखा है, पढ़ा है, सुना है न्यूज में भी कई बार कि सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में, तो वो क्या नहीं कर सकते, एंड वर्क फॉर सोशल एंड नेशनल प्रोग्रेस। अपने आप का डेवलपमेंट करो पहले, बाद में फैमिली का, सोसाइटी का, एंड आगे बढ़कर नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए आज के युवाओं क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सोचने की जरूरत है। आर्किटेक्ट ऑफ फ्री एंड मॉडर्न इंडिया, आज के युवा क्या है ना, हमारे देश के आर्किटेक्ट है, कैसा बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। कौन सा, कैसा देश, फ्री एंड मॉडर्न इंडिया। लेकिन सॉरी टू से आज के यूथ क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ, आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द स्टूडेंट्स communities, but most of us including me, okay, what we are doing, what today's youth are doing, the image says lots of things. I don't require to discuss more about this all images, but conclusion is that आज के युवा क्या है, defeated even before entering the match। आजकल सभी को स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने एक कोट लिया है कि कोई भी मैच में, कोई भी चैलेंज लेने से पहले ही हार मान लेते कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे देश का कुछ नहीं होगा, हमारी सिस्टम ऐसी है। इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा सोचा होता, है ना, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे साउथ अफ्रीका में, महात्मा गांधी, उसको जरूरत नहीं थी कुछ ये करने की, सब छोड़ के। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक अच्छे लॉयर थे, एडवोकेट थे, उसको भी जरूरत नहीं थी। अगर उसने सोचा होगा नहीं मैं अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो क्या उन लोगों ने ऐसे सोचा, भगत सिंह ने, सभी स्वतंत्र सेनानी ने अगर ऐसा सोचा होता तो क्या हमें ये आजादी मिली होती। तो आज के युवा को ये सोचने की जरूरत है कि कोई भी चैलेंज लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज फॉर द मेजॉरिटी ऑफ अस, नॉट ऑल, है ना। Defeated even before entering the match, find themselves in a cage, एक पिंजरे में। इसका मतलब क्या है कि पिंजरे में नहीं पूर गए, ये सिंबल भी दिखाता है ना, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं न कहीं से ये सब सोशल मीडिया, इंटरनेट नेटवर्किंग का जो बैड इफेक्ट है वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं। एडिक्शन हो गया, the youth who is melting and dissolving due to this reckless loyalty of addiction, loyalty to addiction। कौन सी एडिक्शन है, मेजर एडिक्शन। आज हम दारू, गुटखा, सिगारेट, टोबैको की बात को छोड़ो, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए नहीं है अभी। अब फ्यूचर की सोचो, सबसे ज्यादा ये जो एडिक्शन है ये सोशल मीडिया, इंटरनेट नेटवर्किंग का है। तो उसके लिए एक चैप्टर भी हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में आईपीडीसी में, के डिटेल में। आज मैं इसके लिए डिटेल बात नहीं करूंगा, बट यू कैन से दैट थिंक वी ऑल हैव टुगेदर, maybe as a student, as a youth, as an educator in the field of education, we all faculties and teachers have to think about this। आज के युवाओं को इस एडिक्शन से बाहर लाने के लिए हमें कुछ न कुछ करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। ओके, उसका रीजन क्या है, बिकॉज ड्यू टू दिस रिमेन्स कंप्लीटली ड्राई ऑफ एम्बिशन। महत्वाकांक्षा ही सूख जाती है, नहीं कुछ जीवन में ये करना है, वो करना है, कुछ है ही नहीं। हम सब बहाना ढूंढते हैं कि हम कैसे करेंगे, हमारे अकेले से कैसे होगा। रिसेंट एग्जांपल में दूं
तो हमने एक दो बार मैंने ग्रुप के साथ, स्टूडेंट ग्रुप के साथ डिस्कस किया, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट बोलते थे recently related to online teaching, online offline teaching, switching anytime, okay। लेकिन स्टूडेंट स्टेक होल्डर कौन है हमारे टीचिंग सिस्टम के? स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड फैकल्टी। क्या इन तीनों को कोई पूछते हैं कि ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एग्जाम के बिना नेक्स्ट टर्म शुरू कर देना चाहिए? ओके, तो ये कोई सोचने का टाइम नहीं है किसी के पास, ये सब में डूब गए हैं। ठीक है, घर पे रहते हैं, बैठे हैं, एंजॉय करते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब, सभी का। सोशल मीडिया तो डेविल है, उससे आप काम भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डेंजर ही है, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसकी जगह हम नेगेटिविटी में ज्यादा जा रहे हैं, एडिक्टेड हो गए। ओके, और हमारी एम्बिशियस सूख गई है, completely die of ambitions, and youth that was once overflowing with strength and vitality, means energy, high power energy थी उसमें, has now drowned in pathetic imitation life, following blindly others। सभी को हम blindly follow करते हैं, है ना। कोई भी कैरियर बनाना है यार, अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में भी जब मैं बात करूं तो when the time comes for elective choice, then वो ग्रुप में पूछते हैं यार तूने कौन सा सब्जेक्ट लिया? ठीक है, मैं भी वही ले रहा हूँ। हमें पता ही नहीं है, हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। दिस इज फॉर नॉट सिंपल एग्जांपल, एक सादा एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन कोई भी बात, कैरियर सील करना है, कोई भी है, ओके, कोई भी डिसीजन लेना है, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम पे कितना कॉन्फिडेंस है, हम अपने आप से कैसा सोचते हैं, वो सब छूट गया है। और ये सब सोशल मीडिया में भी हम सब किसी को फॉलो ही करते हैं ब्लाइंडली, देखते नहीं उसका रिजल्ट क्या है, कितने डीप में गए, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बारे में कभी सोचा है? उसके लिए हमें अभी सोचना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट टुडेज यूथ आर डूइंग। आई एम अगेन सेइंग दिस इज फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस, नॉट फॉर ऑल। नाउ इंडिपेंडेंस के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, अलग अलग की डेफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हम आजाद है, तो उसका मीनिंग सबको पता होना चाहिए। क्या सही में हम आजाद है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक दो मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। अगर फैमिली में हम बोलते हैं कि नहीं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने तरीके से डिसीजन ले सकूं, ऐसा मुझे इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मैं किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस। अगर नेशन के बारे में बात करें, इज ए कंडीशन ऑफ ए पर्सन, नेशन, कंट्री और स्टेट इन विच इट्स रिसाइड्स एंड पॉपुलेशन और सम पोर्शन thereof exercise self government। This is important because we have our self government, not dependent on others, not under the rule of other state or other countries, and usually authority supreme power over its territory। कोई भी रीजन में ग्राम पंचायत लो, तालुका पंचायत लो, कॉर्पोरेशन लो, तो सुप्रीम पावर हम है, ऐसा बोलते हैं इंडिपेंडेंस में। तो आप सोचिए क्या हम सही में सुप्रीम पावर है? ये सोचने की जरूरत है, तभी हमें पता चलेगा, तब हम कह सकेंगे कि नहीं सही में हम स्वतंत्र है, हमारी गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है ना, अब सब गवर्नमेंट पे ब्लेम कर देते हैं, ऐसा किया, उसकी भी मैं शेयरिंग करता हूँ। तो लेकिन हमारा रोल क्या है, गवर्नमेंट मतलब क्या, वो सोचने की जरूरत है। हमसे ही नेशन बनता है, वी आर पार्ट ऑफ नेशन। तो नेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सब सोचने की जरूरत है, तभी हम सही में इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सकेंगे, हो सकेंगे। नाउ द मेन टॉपिक ऑफ टुडेस, व्हाट यू कैन डू, व्हाट वी कैन डू, ओके, हाउ यूथ कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग इंडिपेंडेंस। अगर आप सोचो कि पहले भी हम स्वतंत्र थे, अलग अलग रजवाड़े थे, किंगडम थे, तब भी थे, लेकिन बाहर के कंट्री के क्यों आए हमारे देश पे, उसने हमारे देश पे कब्जा क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, उसके रीजन अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा। और अभी इंडिपेंडेंस है, वो भी कितने टाइम हम रख सकेंगे, वो भी सोचने की बात है। अगर आज के युवा नहीं सोचेंगे, सब वो सोशल मीडिया वगैरह, मेरा क्या, मेरे को मेरे लिए अच्छा है, दूसरा का जो हो ऐसा सोचेंगे, तो इंडिपेंडेंस सही में इंडिपेंडेंस रहेगा, हम प्रिजर्व कर सकेंगे,
ओके, वैसा लॉन्ग विजन सोच के सही तरीके से सोचने की जरूरत है। तो आज के युवा, मैंने अपने तरीके से ये 4 फील्ड आइडेंटिफाई किया है कि अगर इनमें आज के युवा इंटरेस्ट लेंगे, काम करेंगे, तो सही में हम सच्ची आजादी को एंजॉय कर सकेंगे और आजादी को प्रिजर्व कर सकेंगे। वो क्या है, ये मेरा परसेप्शन है, मेरा व्यू है, ओके, किसी पे ब्लेम नहीं है, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है, मेरे माइंड में जो आया, मैं जो सोचता हूँ वो आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। दिस इज हाउ यूथ कैन कंट्रीब्यूट इन पब्लिक डोमेन विथ मॉरल एंड एथिकल वैल्यू। दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी सब है ही, एजुकेशन सब ले रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है, एजुकेटर भी है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रहा है, आईएएस आईपीएस जो मेजोरिटी कंट्रोल करते हैं, मीडिया भी है, न्यूज एडिटर भी है, सब कुछ है। लेकिन सही दिल से, सही मायने में सोचिए, क्या इन सभी जगह पे मॉरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू है? अगर उसको हम नहीं ला सकेंगे इस सभी फील्ड में, तो मुझे दिखाई देता है कि हम आजाद होके भी आजादी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आज मुझे पता नहीं कितना टाइम अभी बचा है, लेकिन मैं 2 फील्ड को ज्यादा डिस्कस करने का प्रयत्न करूंगा, एजुकेशन एजुकेटर एंड मीडिया और न्यूज एडिटर। एंड इफ टाइम रिमेन्स we will discuss and also we cannot discuss on this platform in more detail related to politics and governance and administration of IAS and IPS. So I will give the less importance or less point of discussion for these 2 points. But for education and educator, what today's youth can contribute, okay, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन मतलब क्या है, बाद में मैं मेरा व्यू रखूंगा कि बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल की डिग्री ले, वो एजुकेशन है। और एजुकेटर क्या कर रहे हैं, वो एज एजुकेटर भी ऑल टीचर एंड प्रोफेसर हैव टू थिंक कि हमें क्या सिर्फ बुक का ही पढ़ाना है, नॉट ओनली नेसेसरी है। अभी आईसीटी ने भी करिकुलम ऐसा डिजाइन किया है, आईपीडीसी जैसा सब्जेक्ट आया है, ह्यूमन वैल्यू को भी हम इलेक्शन कोर्स में समझा रहे हैं। तो एज एजुकेशन सिस्टम आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ वी कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम एज ए यूथ। मे बी यू एज एजुकेटर ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इस पब्लिक में एजुकेशन लाने के लिए, एजुकेशन डज नॉट मीन्स ओनली, अगेन आई एम स्पीकिंग, कि डिग्री नहीं है। डिग्री क्या है, मैं बार बार मैंने कई बार बच्चों को बताता हूँ, स्टूडेंट को बताता हूँ, उसने भी शेयर किया था कि डिग्री मतलब आपने जो फी पेमेंट किया है उसका एक रिसिपी है और मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर किसी फील्ड में आपको कैरियर बनाना है। मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑल्सो नॉट डिपेंड्स टोटली ऑन योर टेक्निकल नॉलेज, दे ऑल्सो टेक इन रिटन टेस्ट, some IQ test, general knowledge, all the things. Okay. During these 4 years of engineering or 3 years of any graduation, you learn only how to learn of your field. लेकिन उसके साथ दूसरी कई चीज भी पता होना चाहिए हमें लाइफ में, है ना? तो इसमें आप कैसे रोल कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। स्टूडेंट कर सकते हैं, कई जगह पे फ्री में कोचिंग करवा सकते हैं। सही में हमारे देश की आजादी को हमें निभानी है, यही आगे ले जानी है, इनक्रेडिबल इंडिया बनाना है, तो सही पब्लिक से जो जिसके पास डिग्री नहीं है उसको समझाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यू, एथिक्स क्या है। मेरे एक सेमिनार में, मेरी एक ईबीएसपी मीटिंग में स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मीडिया ऐसा हो गया है, पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो इस देश में कुछ रहने नहीं लायक नहीं है, हमें तो बाहर चले जाना चाहिए, है ना? तो अब मैंने बोला था कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम सब है। हमारे पास एजुकेशन मतलब सिर्फ डिग्री है, लेकिन हम शॉर्टकट ही ढूंढते हैं, मेरा काम हो जाना चाहिए, इससे पैसे ले लो, जल्दी से हो जाना चाहिए, एज पर रूल्स नहीं। we have taken granted, है ना? ठीक है, ऐसा ही चलता है ना, ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार में, मैं सभी को बार बार बोलता हूँ
कि घूस लेने वाले 10% रिस्पॉन्सिबल है, घूस देने वाले 90% रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब कब होगा? अगर अवेयरनेस आएगी। हियर द मीनिंग ऑफ एजुकेशन मेरा ये है मतलब कहने का कि अगर वो अवेयरनेस हम सभी पब्लिक में लाएंगे। ठीक है, आज ही मैंने देखा जब मैं कॉलेज आ रहा था तब कि ट्रैफिक पुलिस वाले दौड़ दौड़ के पकड़ रहे थे सबको। क्यों? उसको पता है कि इसके पास लाइसेंस नहीं होगा, इसके पास वो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गए और सब भाग ही रहे थे। तो उसमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि नहीं ट्रैफिक पुलिस वाला बस अगर एज पर रूल्स बोले तो 500 या 1000 का रिसिप्ट निकालेंगे, तो हम ही आप सामने से बोल देते नहीं 100 रुपीज 200 रुपीज ले लो ना। ठीक है, तो ये सब अवेयरनेस लाने की जरूरत है। पुलिस वालों को रोकने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अगर ये ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट पे पुलिस ना हो तो हम कैसे मिक्स हो जाते हैं, तो वो सब अवेयरनेस लाने की जरूरत है। तो ये आपके युवा कर सकते हैं। गवर्नमेंट मतलब ये पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का पॉइंट डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन वो क्या करेंगे, कितना करेंगे, इतने सारे हम ब्लेम करते हैं सभी को। तो इसके लिए हमें पूरा एजुकेशन मीन्स अवेयरनेस लाने की जरूरत है। उसमें आप युवा कई रोल निभा सकते हैं। ठीक है, और एज एजुकेटर ऑल्सो यू कैन ऑल्सो बिकम एजुकेटर मीन्स आप किसी को गाइड करो, यू आर एजुकेटर। ओके, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में भी आज के युवाओं को जाना पड़ेगा। अगर सभी ये पॉलिटिक्स गंदी है, गंदी चीज है, ફરી તમને કોઈ કે મ્યુટ કરી દીધા? અવાજ નથી આવતો સર. હા સર કઈ નહીં, એક મિનિટ હું અનમ્યુટ પાછું કરું છું. સાહેબ તમે જોતા રહો અને આજ આપણે શીખવાડવાનું છે. સર જોયું સર, હમણાં તમે 1 સેકન્ડ પહેલા જ અનમ્યુટ થયા. ઇન્ટેન્શનલી કરે છે એટલે આમાં છે ને આપણે કંટ્રોલ કરવાની જરૂર હતી, પણ હવે ટાઈમ પૂરો થવાય તો ઘણા ઇન્ટેન્શનલી કરી શકતા હોય અથવા બાય મિસ્ટેક પણ થઈ શકતા હોય. લેટ અસ હોપ પોઝિટિવ. ઓકે, કે બાય ઇન્ટેન્શનલી કોઈ કરી દેશે. નાઉ એમ આઈ ઓડિબલ? યસ હેલો, યસ સર. સર યસ સર. ये मेन प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट है, मेरा मेन थीम में मेरा आइडिया है। हो सकता है आगे की सभी में मैंने कहीं से कहीं कॉपी किया हो, लेकिन दिस इज ये निचोड़ है। आज के जो लेक्चर था उसका निचोड़ है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में भी जाना पड़ेगा, अच्छे पॉलिटिशियन की भी जरूरत है। गुड गवर्नेंस भाई तब भी आएंगे, वरना गुड गवर्नेंस हम नहीं ला सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना पड़ेगा, पूरी सिस्टम वो पॉलिटिशियन और आईएएस आईपीएस ऑफिसर और गुजरात लेवल पे सीएससी अलग अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, कुदरत ने हर एक में कुछ न कुछ डाला है, हर एक युवा में, तो उसको आइडेंटिफाई करो। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखो, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाओ। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा वो मीडिया और न्यूज एडिटर। तो अभी एजुकेशन और एजुकेटर कैसे होने चाहिए उसके रिलेटेड में मैंने एक लेखक का बोर्ड पढ़ा था, वो गुजराती में था। मैंने ये ग्रुप में भी बीएसबी क्लब में भी शेयर किया था। ये एक बहुत अच्छे गांधीवादी ऑथर है, जिसके मकान में मैं रहता था, भावनगर था तब, मनुभाई पंचोड़ी। उसका नाम है दर्शक। उसने बहुत सारे बुक लिखी है। तो उसने डेफिनेशन गुजराती में मोस्ट ऑफ एबल टू अंडरस्टैंड, फिर भी मैंने इंग्लिश में भी अपने तरीके से कन्वर्जन किया है। मैं भी मीनिंग रिमेन सेम, परफेक्ट इंग्लिश है वो भी मुझे पता नहीं है। तो एजुकेशन मीन्स व्हाट, शिक्षण એટલે શું અને શિક્ષણનું ખરું કામ શું છે, એજ્યુકેશન क्या है, उसका काम क्या है। Not to give only knowledge, imparting knowledge is not actually education enough. नॉलेज तो सभी के पास है ना, हमारे सबके पास नॉलेज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इन रियल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। हमें पता है सब ऐसे होने चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के रूल्स का पालन करना चाहिए, लेकिन क्या हम करते हैं? हमें घूस नहीं देनी चाहिए, भ्रष्टाचार के पार्ट नहीं बनना चाहिए। क्या हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहीं भी ऐसा करते हैं, नहीं करते?
तो ये सब लार्ज स्केल पे तभी होगा कि जब आज के सभी युवा इसमें एक्टिव हो, सभी युवा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसको हम पॉजिटिव सोचना चाहिए। सभी लोग नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं इंडिया की आबादी ज्यादा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें से मैक्सिमम युवा है, तो हम उसको पॉजिटिव लेके युवा कुछ भी कर सकते हैं। तो एज्युकेशन એટલે ભણાવવું એવું જ નથી, બટ ટુ ગીવ ધ કરેજ, મેસિક્યુરિટી, મર્દાનગી આપવી, હિંમત આપવી, है ना, ये एजुकेशन નું કામ છે। कई बार मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को, बार फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट को बोलो कि नहीं आप सही रिप्रेजेंट करना सीखो। नहीं, मुझसे नहीं बोलेगा कि नहीं सर मुझे वाइवा में परेशान करेंगे, एग्जाम में परेशान करेंगे। तो अगर मुझसे कोई कंप्लेंट करनी है, मेरी विरुद्ध कोई कंप्लेंट करनी है, सही सही बोलता हूँ मैं, हर एक चीज में मॉरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू को याद रखना है ना। किसी के बारे में कंप्लेंट करनी है तो पहले सोचना है, लेकिन अगर सही में कंप्लेंट करने से ऐसा इंसिडेंट है फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि डर लगता है, हिम्मत नहीं है कि मुझे सर परेशान करेंगे तो, है ना। ऐसे हर एक तो मैंने एग्जांपल दिया, हर एक फील्ड में सोचना पड़ेगा हमें, है ना। मैं एक स्टूडेंट सुभाष के साथ डिस्कस कर रहा था हमारी ईबीएसपी एक्टिविटी के बारे में, तो उसने बोला कि नहीं हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, हम ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें इसका आइडिया ही नहीं। तो इसे इम्प्लीमेंट करें वो इम्पोर्टेंट है। तो हिम्मत की जरूरत है, मर्दानगी आपकी। શિક્ષણનું મુખ્ય કામ અન્યાય સામે લડતા શીખવવાનું છે। The main function of education today is to teach to how to fight against injustice। वरना हम इंडिपेंडेंट है ही नहीं। पहले भी किसी कोई बोले वैसा करते थे, आज भी कोई बोले वैसा ही करना है हमें, तो क्या हम स्वतंत्र है? ऐसा है, दिल से, हृदय के भाव से सोचने की जरूरत है। पहले भी अंग्रेज लोग कहते थे वैसे ही हम करते थे, आज भी अगर आईएएस आईपीएस ऑफिसर करे वैसे ही करे। पूरा सिस्टम में एजुकेशन मिनिस्टर बोले ऐसे करना है, आईएएस ऑफिसर बोले ऐसे करना है, हम बोले टीचर स्टूडेंट को ऐसे ही करना है। तो क्या हम सही में स्वतंत्र है? इसके लिए सोचने की हम सबको जरूरत है। तो फॉर आवर the main function of education today is to teach fight against the injustice। This is the point of education and educator। Okay, तो આપણા શિક્ષણમાંથી બીજું સાહિત્ય, lots of literature is available, बट उसमें से भी ये ताकत, ये हिम्मत आवी જોઈએ કે સામાન્ય માણસ પણ ઉઠી અને ઊભો થાય, હિમ્મત પૂર્વક રજૂઆત કરતા શીખે, અન્યાયના નિવારણ માટે લડતા શીખે, અન્યાય સહન કરતા નહીં, એનું નિવારણ લાવે, સોલ્યુશન આવે એના માટે લડત આપતા શીખે। એ આજના એજ્યુકેશનનું ખાસ કામ છે। This is from our education, from literature, such as a strength should be born that the common man can arise up and fights for the prevention of the injustice। This is the real work of education। Okay, खाली एजुकेशन लेवा खातर नहीं, शिक्षण खातर शिक्षण नहीं, साहित्य खातर साहित्य नहीं, सेवा खातर सेवा नहीं, आ ત્રણેયમાંથી શક્તિ પ્રગટવી જોઈએ। માણસ હિંમત પર બેઠો થવો જોઈએ, અને જો આવી તાકાત ન આવે તો આજનું શિક્ષણ, સાહિત્ય, સેવા બધું નકામું છે। Okay, if such strength does not come, then education, literature, service, everything is useless। So this is a very good important part I like, and I try my best to explain it। Okay, मैंने मुझे जो पसंद आया एक quote एक ही लिया है मैंने एजुकेशन और एजुकेटर के लिए। तो ये आप बन सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, एजुकेटर भी बन सकते हैं। कैसे बने उसके लिए हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब ने हमने बहुत सारे पॉइंट सोच रखा है। अगर जिसको इंटरेस्ट है उसमें कर सकते हैं। बार बार मैं बोलूंगा, अगर वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और सभी स्वतंत्र सेनानियों ने ऐसा ही सोचा होता तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आजाद तो हो गए हम, क्या सही में हम आजादी के फल खा रहे हैं? उसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। ये आज का ही पेपर है। मैंने कई बार, पहले मैं गुजरात समाचार पढ़ता था, लेकिन 2 साल से मैंने बंद कर दिया, और 1 साल से तो मैं पेपर ही पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि मीडिया में भी, टीवी चैनल से सुनो आप, न्यूज़पेपर से सुनो, और मूवीज में भी, है ना। मेरा एक कंक्लूजन है, मैं बार बार स्टूडेंट को बताता हूँ कि हमारे देश का झड़प से प्रोग्रेस नहीं होता, है ना। वी कैन नॉट रीच आवर इंडिया, नॉट अप टू द मार्क।
टिल डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो उसके लिए रिस्पॉन्सर 2-3 ही सेंटेंस मैंने निकाले। डिफरेंट रिलीजियन एंड डिफरेंट कास्ट, दैट इज वन। अलग अलग जाति और अलग अलग कास्ट, जिसका बेनिफिट लेते हैं सभी पॉलिटिशियन। ओके, सो दिस इज द मेन लूपहोल फॉर आवर कंट्री। दो ही कास्ट है, पुरुष और स्त्री। ओके, और एक ही धर्म है, दैट इज ह्यूमन बीइंग, मानसाय। मानस मानस विषे विचारे, बस આમાં બધું આવી ગયું છે। એક જ ધર્મ છે, બરાબર, અને બે જ જ્ઞાતિ છે, બાકી બધા હિંદ છે। ફ્રોમ ટુડે ન્યૂઝપેપર ઇટ ઇઝ ગુજરાતી, આજે એવું લખેલું હતું કે કોરોના સેકન્ડ વેવનું જોખમ તોડાઈ રહ્યું છે। એ બધું તો વાંચ્યું, ચાલો, પણ આ વાક્ય મને બહુ ગમ્યું। आज સૌથી મોટું આપણું રાષ્ટ્રીય કર્તવ્ય કયું છે? મેઇન हमारी ड्यूटी आज क्या है? ये सब जो डिसिप्लिन वाले रूल्स बनाते हैं उसका पालन करें। किसके लिए है सब, है ना? हम मास्क पहन के नहीं जाए तो किसको तकलीफ होगी? हमारे लिए तो है, और हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट क्या करे? अरे 2 कोट इंपोर्टेंट लिया मैंने कि ये क्या है, सावधानीथी तेने काबूमां राख्यो तो देश तमारी पासेथी फरी एवी जागरूकतानी अपेक्षा राखे छे। मास्क पहेरो, 2 हाथનું અંતર રાખો, અને બીજાને પણ दिस इज इंपोर्टेंट। यू ऑल्सो एजुकेट, दूसरे को भी बोलो कि अपने लिए है ना, अपने लिए है। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑफिस में भी बोलता हूँ, सभी को पता है कि नहीं मास्क पहना है तो मुंह पे है, नाक पे नहीं है, तो मैं गुस्से से बोलता हूँ कि मास्क निकाल दो, या तो सही तरह से पहनो वरना निकाल दो। तो आज हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? ये अवेयरनेस लाने का है ना, ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है। और दूसरा तो ये सही, ये पॉजिटिव न्यूज है। और यहाँ पे थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा, मेरा पर्सपेक्टिव है कि लोगों के बारे में क्या लोग क्या सोचते हैं, ये सब बंद करो, है ना। ऐसा लगता है कि ये लिखा है कि प्रजा बोलते हैं कि चूंटणी मैच में भीड़ भेगी करी, हवे अमारा धंधा ने लात मारवानुं बंद करो। सो उसको पब्लिक, जनरल पब्लिक नेगेटिव ले रही है कि इलेक्शन में इतनी भीड़ हुई, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इलेक्शन में अगर किसी ने सभा रखी तो क्या कंपलसरी था उसमें जाना, है ना, जाना जरूरी था? तभी मैंने एक कोट शेयर किया था मेरी ईएसपी ग्रुप में कि सही में अगर हम आजाद है तो इलेक्शन में पब्लिसिटी, प्रचार की जरूरत ही ना पड़नी चाहिए। सभी वो उम्मीदवार को पहचानने चाहिए, उम्मीदवार को देखकर, कैंडिडेट को देख के वोटिंग करें। अगर सब कैंडिडेट को पहचानते हैं तो पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? और पब्लिसिटी के लिए ही सब पब्लिक को इकट्ठे करते हैं। तो एज ए पार्ट ऑफ पब्लिक वी आर गोइंग इन सच ए मीटिंग। ये मेळावडामां આપણે જ બધા જઈએ છે, તો એ મારી દ્રષ્ટિએ બહુ આપણે બધાએ વિચારવાની જરૂર છે કે ગવર્નમેન્ટે, પોલિટિશિયને ભીડ ભેગી કરી, પણ ક્યાં તમને પકડીને જબરજસ્તીથી લઈ જતા હતા? એમાં આપણો સ્વાર્થ હતો, કાં તો કોઈ પૈસાથી ગયા છે, કાં કોઈ પણ સ્વાર્થ માટે ગયા છે કે હું આને ચૂંટાવી દઉં પછી આ મારું કામ કરી આપશે। So for this we all have to think about this. Okay, ये डिटेल में मैंने लिया है। तो अभी मैं ज्यादा सबको बोर नहीं करूंगा। हो सकता है किसी को मेरी बात से बुरा भी लगे, लेकिन मेरा परसेप्शन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं सही में मानता हूँ कि आज के युवा अगर नहीं सोचेंगे तो फिर से अलग तरह की आजादी को हम नहीं सोच सकेंगे। अलग तरह के रूल्स हमारे पे आएंगे। मैंने बोला कि सही में हम आजाद है, ये सोचने की जरूरत है। हर एक फील्ड में जो मैंने 3-4 फील्ड डिसाइड किए हैं उसमें हम सबको सोचने की जरूरत है। आप सभी लोगों ने मुझे आराम से सुना, शांति से, इसके लिए सभी का धन्यवाद। आई ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। हम सभी आशा रखनी चाहिए, बेस्ट के लिए ही सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा तो ये गलत बात है। एंड आई वांट प्रॉमिस फ्रॉम यू टू बी ए ट्रू इंडियन यूथ। एंड यस, इफ यू थिंक, इफ यू कैन, अगर आप सोचोगे तो आप कर सकोगे। एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। एंड आई विश for a bright future
and this one quote I always say that I cannot teach. किसी को सिखाना बहुत difficult है, मैं तो सिर्फ समझाता हूँ. I cannot teach, but I explain. Wishing healthy and happy life to all, and all of you are requested to understand the importance of integrity and moral values, and differentiate between wants and needs, and know the difference between price and values. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jawan, Jai Kisan, Vande. Thank you very much, sir, for your patriotic presentation. I would say you have given an elaborative view how youth can contribute to the preservation of independence. And you also told us about the role of education, how through education we can transform India, we can preserve the independence of India. Along with that, you made the participants understand their duties in the present time, where we are fighting against this pandemic situation, wherein you rightly indicated through that newspaper that our present national duty, I would say, is to maintain social distance, wear mask, and educate others regarding taking precautions. So that's so nice of you, sir. And again, I would like to thank you. I would request Saita ma'am, today's in charge principal, to say a few words on this occasion of celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. Saita ma'am, please. Yes. Hello. Yes, Sir, ma'am, you are audible. Okay. It is very nice to see sir again, to hear Bua sir. I have already heard many a times. So I took the privilege to thank you and welcome for all the participants for attending this talk given by the Bua sir on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So entire department as well as on behalf of the principal sir, I thank to all the participants who have taken out times and listening peacefully whatever sir has said, the ideas. So sir has covered many aspects of the day-to-day life requirement about the independence, also how the things are changes over here, what are the ethics of the life, how ethics is so important for a very quality life. So thank you, Bua sir, for sharing all such good thoughts to the students as well as to us also. Thank you very much, ma'am. Yes. Yeah, ma'am. Would you like to say something? Yeah, ma'am. No. Thank you. Okay. So thank you, ma'am, for your occasional words. Again, with the thank to Bua sir, we here conclude our celebration for now, and we shall have another activities under this Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration, and we may expect Bua sir we may expect from Bua sir that he would again be with us for such occasions. So Yes, thank you, today, Bua sir. Thank you, participants. Thank Yes, you. sir. You wanted to say something. Add something. This was the overview. जो भी टॉपिक मैंने लिया, एक एक टॉपिक पे भी हमने सोचा है एक बार श्रेष्ठ भारत क्लब की एक्टिविटी में और आजादी के एक एक टॉपिक में भी दूसरे एक्सपर्ट को भी हम इनवाइट करके मैं भी मेरे पहचान वाले एक्सपर्ट को बुलाऊंगा. एक एक टॉपिक पे एक एक वेबिनार हो सकता है. We know that today's youth are not bearing much time. That is why today मैंने शॉर्ट में आज बताया कि आधा घंटे से ज्यादा लेक्चर में भी अटेंड नहीं करते, तो ये तो सब आजादी के लिए है. आजादी को किसी को वैल्यू ही नहीं है तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मैंने शॉर्ट में बताया एक एक टॉपिक में. लेकिन ज्यादा मैंने एजुकेशन एज ए पार्ट, आई एम बीइंग ए पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ बोला. अगर कोई गलत हो तो मुझे माफ करे. मेरा व्यू था ये सब. कोई स्टूडेंट, कोई फैकल्टी को कोई बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बट मुझे जो माइंड में आता है वो मैंने बोल दिया है. और होप दैट टुडेज यूथ, यस, आज के युवा में बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन आगे आए
हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब और ये आजादी के अमृत महोत्सव को भी ऐसा महोत्सव बना दे कि हम याद रख सके, हमें आजादी की वैल्यू पता चले। मुफ्त में मिल गई है इसलिए वैल्यू नहीं, ये मैं सोचता हूँ। तो वैल्यू पता चले, इसके लिए सभी स्टूडेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटी और ये आजादी के 75 इयर्स का जो सेलिब्रेशन अमृत महोत्सव, हम अमृत तब ही चाख सकेंगे कि अगर हमें पता हो कि आजादी क्या है और कैसी होनी चाहिए, तभी हम उसके अमृत के गुण हमें मिल पाएंगे। थैंक यू राणा जी। Yes, Rana sir, you can. Yes, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you very much for your concluding remark also. So last but not the least, I would like to thank all the students, all the teachers and heads of the departments to be here in this session to support us and to motivate us. So thank you very much, all of you. Here we conclude our seminar. Thank you all. Thank you.